Good morning, student. Welcome back to chemistry class 12th, and I hope all of you have finished your examinations, happily examination very well. And as you know, I have started D and F block elements, in which I started transition element. And about the transition element, I have told you the general properties of the transition elements and in which we were discussing in yesterday video the electronic configuration of 3D series. Now today we will see the electronic configuration of 4D and 5D series. Okay. Now 4D series elements and 5D series elements. 3D series and elements yttrium, zirconium, newtonium, once again, yttrium, zirconium, vanadium. These are the elements of the 4D series: yttrium, zirconium, newtonium, molybdenum, technetium, rhenium, palladium, silver, argentum, and cadmium. These are the elements of the 4D series. Yttrium is first, then zirconium, next one is the pneumonium, and next molybdenum, technetium, rhenium, and palladium, and silver and cadmium. These are the elements. And atomic number of these elements are, it started from the 39, 39 plus 18, 39, 39 plus 18. So one series na 39, 40, 41, 42, 43. These are the atomic number. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46, 46 element. One element is left here. Ru, ruthenium, rhenium. Okay. Then AgCd. Then this one is the 44, 45. Once again, I will write this. There is some confusion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
There should be 10 elements. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45. There are the following elements in the 40 series. First one is the yttrium, atomic number 39, zirconium 40, nibonium 41, molybdenum 42, technetium 43, ruthenium 44, rhenium 45, palladium 46, silver 47, and cadmium 48. These are the 10 elements of the 4D series. Okay, and their atomic number is given as, okay. Now we will see the electronic configuration. There is the 39 means just in front of the क्रिप्टॉन, मतलब ये क्रिप्टॉन के बाद है यहाँ पे 39, क्रिप्टॉन का 36 होता है, तो यहाँ 41 5s2, 41 5s2, okay. 36 plus 3 is the 9, 39. Now krypton 42 5s2. Now nibonium krypton 43 5s2. Now krypton 44 5s2. This may be 45 and 1, okay. And this one is the krypton 4d5 4s2, and krypton 4d 4d5, sorry यहाँ पे 5s2 5s 4d6 5s2, 4d6 5s2, 4d7 5s2. Now krypton 4d8 5s2. This one is, okay. Next one is the 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Here is a, here will be 3d8 4s2, and in this one krypton 3d10 5s0. Then krypton 3d10 5s1, and in the last cadmium krypton 3d10 5s2. Okay, this is the electronic configuration of the 4D series. You can remember this: yttrium, zirconium, nibonium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhenium, palladium, argentinium, and or you can say silver, cadmium. Here are some exceptions. Molybdenum, here is the electronic configuration, this one, okay. 39, 36 plus 3, 40, 36 plus 4, 51, 36 plus 5,
42, 36 plus 6, 43, 36 plus 8, 44, 36 plus 9, okay, 45, 36 plus 10, okay. Note down this. Have you noted? Have you noted this? Here is the yttrium 4d1 5s2, zirconium 4d2 5s2, Livonium 41 4d3 5s2. Here is exception. This one is the exception. Okay. 4d 4 होना चाहिए मगर यहाँ पे क्या है 4d5 5s1. Now then regular technetium 4d5 5s2, ruthenium 4d7 5s2, then rhenium 4d8 5s1, and this one is the palladium. This one is the exception. Okay. 3d10 4s not. 47, this one is also exception. Okay. 3d10 here should be 3d9 4s2, but according to Hund rule क्या होगा यहाँ पे 3d10 4s1. अब 48 cadmium 3d10 4s2, and this cadmium is not considered as the transition element. Okay. Now we will see the electronic configuration of 5d series. Atom, here is the element and atomic number. We will start from the lanthanum. Lanthanum, hafnium, next one is the technetium, not technetium. This one is the titanium, vanadium. This one is the tungsten, Re, osmium, iridium, platinum, gold, and mercury. I will told you about this. Now, atomic number started from the 57, 58. Okay, 57 from 57. 57. Here is the gap between lanthanum and hafnium. Now then from 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, and 81. Something is wrong. Something went wrong. See the atomic number. Now see here the atomic number of lanthanum to mercury. Here is gap 71 and 72. Between these two elements, lanthanides belong to the F block. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 57 से हम सीधे 72 आ गए, तो ये यहाँ पे एक गैप है. इसमें जो एलिमेंट है 14 एलिमेंट,
वो लेंथेनॉइड्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी जो है लेंथेनम से मिलती है, इसलिए उनको एफ ब्लॉक में उठा करके रख दिया गया है। वो 58 से लेकर के 71 तक, 58 से लेकर के 71 तक, ठीक है। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब ये जो हमारा 57 है, तो इसके बाद हमारा ये जेनॉन से शुरू होगा। कहाँ से शुरू होगा? जेनॉन से शुरू होगा, ठीक है। जेनॉन के बाद यहाँ पे हम, जेनॉन का कितना होता है 54, ओके। नाउ हियर विल बी 4F 14 5D2 4S2. This is the electronic configuration of Optium. Now here is xenon 73 4F14 5D3 4S2. Now the tungsten 4F14 5D4 4S2. Now here is xenon 4F14 5D5 4S2. Okay. Here is osmium, okay, 4F14, yes, 5D6 4S2. Now here is beryllium Xe 4F14 5D7 4S2. Now xenon 4F14 5D9 4S1, okay, and write down. Next one will be xenon 4F14 5D10 4S1, and next one is the mercury 4F14 5D10 and 4S2. This is the electronic configuration of 5D series element, okay. Here is simply you have to remember that last electron is entering in the D 5D, and all have 4F14 except this one lanthanum, okay. Now you can see 2 3 4 5 6 7 9, here is exception like 10 10. Yes, you have to remember this. Now in S have 2 2 2 2 2 electron, only here is 1 1, there is 2 2. इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जहाँ एक्सेप्शंस होते हैं वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ती है। चलिए अब हम लोग जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 सीरीज 4 है, 3 सीरीज जो है कि कंप्लीट है, और जो चौथी सीरीज है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। पहली सीरीज में स्कैंडियम से जिंक तक था, दूसरी सीरीज में एट्रियम से लेकर के कैडमियम तक था, और तीसरी सीरीज में जो है कि आपका लैंथेनम से लेकर के मरकरी तक है, जिसमें से लैंथेनम और हाफनियम के बीच में 12 ऐसे एलिमेंट हैं जो आउट ऑफ द पीरियोडिक टेबल बॉटम में रखे गए, जिनको हैप्लॉक एलिमेंट या इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ठीक है।
क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी जो है लगभग लेंथेरियम से मिलती है, उनके रेडियाई वगैरह में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो प्रॉपर्टी उनकी लगभग सेम होती है। ठीक है, तो आज ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम इसमें देखेंगे जनरल प्रॉपर्टी। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा। ओके, इसमें अब हम देखेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इससे पहले हम एटॉमिक एंड आयनिक रीजन, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई देखेंगे। ठीक है, एटॉमिक आयनिक रेडियाई क्या होता है ये तो सबको पता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसमें यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि आयनिक एटॉमिक रेडियाई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डी सेल में जा रहे होते हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है वैसे वैसे थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन या यू कैन से दैट अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। तो जो रेडियाई है छोटी होती जाती है, किसी भी सीरीज में जाने पे छोटी होती जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद के बाद इलेक्ट्रॉनिक जब रिपल्सन शुरू हो जाता है तो साइज में डिफरेंस ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, तो देयर इज इन 3D से in 3D series elements there is regular decrease in size with increasing atomic number, atomic number। ठीक है, 3D सीरीज में रेगुलर डिक्रीज इन साइज होता है, तो वो डी सेल में चूंकि इलेक्ट्रॉन जाते जाते हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है वैसे वैसे अट्रैक्शन बढ़ता है, साइज क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, ऐसा ये होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है बिकॉज electron enter into electron enter into electron enter into d सबसे। ओके, ये चीज हम 3D सीरीज को नहीं, 3D सीरीज में ही नहीं केवल, बल्कि हम 4D 5D सीरीज में भी देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है कि सेम डी सीरीज में जा, डी सबसे में जा रहा होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि साइज कंटिन्यू डिक्रीज करती रहती है। आई बात समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट हम केवल 3D के लिए नहीं, हम 4D 5D के लिए भी लगा सकते हैं। ठीक है, और वहां पे एक चीज और भी होती है, एंड न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज बाय 1 यूनिट। 1 यूनिट। ठीक है, इस तरह से हम 4D में भी देख सकते हैं और 5D में देख सकते हैं। आई बात समझ में? लेकिन
लास्ट में जो हमारा सीरीज में एलिमेंट होता है, ठीक है, बट इन द बट इन लास्ट एलिमेंट्स एलिमेंट्स इन 3D 4D and 5D सीरीज, ठीक है, इनमें क्या होता है कि साइज में डिक्रीज नहीं होता है, क्या होता है, थोड़ा इंक्रीज होता है, साइज क्या होता है, इंक्रीज है, स्मॉल इंक्रीज इन साइज is observed is observed, okay, small increase in size is observed due to, क्यों होता है ये, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने लगता है क्योंकि अंदर का जो डी सेल है वो तो कंप्लीट हो जाता है। एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं, पहले एक बार इसको बता दें, 3D सीरीज एलिमेंट यहाँ पे चाहे 3D हो 4D हो, एक रेगुलर डिक्रीज इन साइज होता है, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज के एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ, ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है डी सबसेट में जाता है और न्यूक्लियर चार्ज हर बार 1 यूनिट बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, 1 यूनिट बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से साइज थोड़ी कम होती है, लेकिन जब हम सीरीज के लास्ट में पहुंचते हैं, सीरीज के लास्ट में जैसे हम 3D सीरीज के लास्ट में जिंक है, उससे पहले कॉपर है, 4D सीरीज में लास्ट में कैडमियम है, उससे पहले सिल्वर है, 5D सीरीज में लास्ट में मरकरी है, उसके पहले जो है कि इरिडियम है, ठीक है, उससे पहले क्या है, सॉरी गोल्ड है, उससे पहले गोल्ड है, ठीक है, तो इन इन सारे एलिमेंट में जो हमने 6 एलिमेंट बताए, उन 6 एलिमेंट में अगर हम देखें तो क्या हमें दिखाई देता है, उन 6 एलिमेंट में ये देखते हैं कि जैसे जैसे डी सेल कंप्लीट हो जाता है तो अब केवल इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले सेल में जाना होता है, तो लास्ट वाले सेल का इलेक्ट्रॉन और डी सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है, तो साइज क्या होती है, बढ़ जाती है, तो ऐसा केवल लास्ट के दो ग्रुप में होता है, हर सीरीज का जो लास्ट एलिमेंट होता है, दो लास्ट के दो एलिमेंट होते हैं, उनमें हम देखते हैं साइज इंक्रीज करता जाता है, साइज क्या होता है, इंक्रीज करता जाता है, ठीक है, और उसके पीछे रीजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, और वहां पे डी ऑर्बिटल क्या होता है इस केस में, जो लास्ट के एलिमेंट होते हैं उनके डी सबसेल क्या होते हैं, कंप्लीटली भर गए होते हैं, ठीक है, तो ये हो गया हमारा एटॉमिक साइज और सॉरी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई के बारे में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और हम देखेंगे, इसको रिलीज करते हैं, ये बात अगर समझ में आ गई तो एक थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात है कि 3D 4D सीरीज में तो इंक्रीज दिखाई देता है, लेकिन 5D में उतना इंक्रीज नहीं दिखाई देता है, ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या होता है, इन केस ऑफ 3D एंड 4D सीरीज decrease in size decrease in size is observed clearly, but in case of but in case of
5D series elements decrease in size decrease in size is very small, और ये कह सकते हैं कि decrease in size is very small. You can say very small, or you can say virtually same. Okay, or elements, radii of elements are, your size of elements are virtually same due to lengthened contraction. या कह सकते हैं कि पुअर सीलिंग और पुअर सीलिंग of पुअर सीलिंग ऑफ 4F सबसेट। तो जितना हम डिक्रीज देखते हैं 3D 4D सीरीज में, उतना 5D में नहीं मिलता है हमें। यानी हाफियम से लेके जो है कि हम मरकरी तक देखते हैं तो साइज में उतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं होता, लगभग सेम हमें मिलता है। तो उसके पीछे रीजन क्या है? पुअर सील्डिंग इफेक्ट या लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब इस चीज़ को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और पुअर सील्डिंग। ओके, थैंक यू।